Good morning, students. Today is Thursday. Today we will do English homework. Before we begin, I want you to get one notebook, your English Bal Bharati textbook, a red pencil, a blue pencil, and your regular pencil. When you have that, you can press play. Alright? Today, we are going to learn about action verbs. What are action verbs? Let's find out. This is your poem. You can see a lot of things that are happening. Students are doing many things. Yeah? So let's see what are action verbs. An action verb answers the question, what is the person doing? ये इंसान क्या कर रहा है? ये हमें action verb से पता चलता है. For instance, what is the cat doing? What is the cat doing? What is this cat doing? The cats sit on chairs. What do cats do? Cats sit on chairs. Alright, let's take another example. What do Peppa Pig and George do? Peppa Pig और George क्या करते हैं? Peppa Pig and George jump in muddy puddles. Peppa Pig or George jump in muddy puddles. Alright? How are action verbs used in a sentence? Sentence में action verbs कैसे use किए जाते हैं? वाक्य में 3 भाग होते हैं. कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और कैसे, नहीं तो कहाँ, नहीं तो कब कर रहा है. Okay? Who is doing? What are they doing? How or where or when are they doing? Okay? ये हमारा sentence triangle है. Sentence के 3 भाग होते हैं. Right? Let's move on. In the sentence, cats sit on chairs. हमें क्या पता चलता है? कौन sit ये action कर रहा है? Cat. So who, the answer to the question, who is cat? क्या कर रहे हैं cats? Cats बैठ रहे हैं. Cats are sitting. So the what is sit. Lastly, कहाँ बैठे हैं? किस पर? How, कैसे बैठे हैं? Chairs पर बैठे हैं. On chairs. Similarly, who, Peppa Pig and George are doing what? Jumping. They do jump. And where? In muddy puddles. Okay? तो हमारे सेंटेंस के 3 जो पार्ट्स रहते हैं, who, what and how नहीं तो where, ये हमारे इस सेंटेंस में आंसर किए गए हैं. Who, what and where. Okay, let's move on. For now, you're going to take your English Bal Bharati textbook, open to page number 6. Open to page number 6. Put your magic finger in the air and let's read along. Girls and boys make lots of noise and run and jump and laugh and shout, while here and there, with quiet air, groups of children walk about. ओके, मैंने अब एक बार पढ़ लिया है, आपने सुन लिया है, अब आप खुद से पढ़ लो. ओके, वन टाइम, एक बार खुद से पढ़ लो. उसके बाद फिर से वीडियो शुरू करो एंड लेट्स रीड. अ गेम begins, but no one wins, although they play
with might and main. For long before the game is over, the bell rings out for school again. Okay, that was your second stanza. पहला stanza आपने पढ़ लिया है, अभी second stanza मैंने पढ़ लिया है. आप वीडियो को पॉज करो और खुद एक बार रीड कर लो. Okay, once you are done reading, play the video again and let's find out the action verbs. Okay, इस पोएम में बहुत सारे एक्शन वर्ब्स है, इसीलिए हम एक्शन वर्ब्स इस पोएम से सीख सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, मेक नॉइज, ये तो हम पहचानते हैं, हम क्लास में क्या करते हैं, या शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेकिंग नॉइज. एज यू कैन सी, all of these kids are running around, they are shouting, they are screaming and giggling and laughing and being loud. They are making noise. क्या कर रहे हैं वो? noise बना रहे हैं. Next, run, हमें तो run ये शब्द पता है. फिर jump, ये भी शब्द हमें पता है, jump मतलब कूदना. Next, walk, we also know how walking looks. Now, let's take a second to imagine, क्या इन लोगों का गेम शुरू हो गया है या अभी ये hands ऊपर करके शुरू करेंगे? I think that the game has not begun yet. The game is going to begin. Now, these 3 or 4 people, क्या आपको लगता है ये लोग उनका गेम हार गए? I don't think so, because she is smiling, their hands are up, they're giving each other high fives. So what do you think they did? Yeah, these girls have just won a game. They are winning. This picture shows that winning is the action verb. Lastly, play. Play तो हम सबको पता है. Play मतलब खेलना, जैसे कि पकड़म पकड़ाई, लपा छुपी, लिंगोचा, etc. What are these two doing? They are laughing. What is she doing? She is shouting. And what is this bell doing? इस बेल का क्या हो रहा है? वो रिंग कर रहा है. डोरबेल नहीं तो स्कूल का बेल रिंग होता है. Alright, these are some other action verbs that might be useful for you. इसका पिक्चर मैं आपको भेज देती हूँ. पर आज हमने इस पोएम में से ये 10 एक्शन वर्ब्स पता किए हैं. कौन से? रन, जंप, laugh, shout, walk, begin, play, ring and make noise. Alright? Now, not only were there a lot of action verbs in this poem, there were also 4 new words. सबसे पहले पोएम का टाइटल क्या है? रिसेस. पोएम का टाइटल कहाँ पे होता है? यहाँ पे. रिसेस क्या होता है? क्या लगता है आपको? रिसेस इज शॉर्ट ब्रेक, नहीं तो लंच ब्रेक. कोई जो स्कूल में ब्रेक मिलता है बच्चों को थोड़ी देर खेलने के लिए, खाने के लिए, उसको हम रिसेस कहते हैं. जो हमारा ब्रेक होता है उसको रिसेस कहते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट इज क्वाइट एयर. अभी हवा तो शांत नहीं हो सकती है, या बिकॉज हवा तो आवाज नहीं बनाती है. बट इफ फॉर इंस्टेंस यू एंड आई आर टॉकिंग और दूर से जो कोई देख रहा है उनको हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो वो बोलेंगे that you and I are speaking with a quiet air. However, समझो हम दोनों जोर से चिल्ला रहे होंगे, उनको भी सुनाई देगा, उनको भी हमारी आवाज सुनाई देगी, तो वो क्या बोलेंगे? क्वाइट एयर है ऐसे बोलेंगे, क्वाइट सॉफ्ट कन्वर्सेशन है ऐसे बोलेंगे, या तो दे आर शाउटिंग ऐसे बोलेंगे. Alright, so when you and I are talking softly, धीरे से एकदम कम आवाज में जब हम बोल रहे होंगे तो हमारे आसपास क्या होगा? क्वाइट एयर. ओके, सो क्वाइट एयर मीन्स साइलेंस, नहीं तो somebody is talking softly. Alright, might and main.
अभी आप सोचो, ये चारों क्या लगा रहे हैं इन अंकल का हाथ नीचे करने में? क्या लगा रहे हैं? क्या ये दम लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं? या तो might and main talks about strength. It says with a lot of strength. बहुत सारे ताकत और दम के साथ. तो with might and main means बहुत सारे ताकत और दम के साथ. Lastly, over मतलब over ही. ये कोई नया शब्द नहीं है, बस उन्होंने राइम कराने के लिए to rhyme over with before उन्होंने V निकाल दिया है. So over and over are the same thing. Okay. Now अभी हमने new words जान लिए हैं, हमने action verbs जान लिए हैं. अब हम हमारे pencils ले आएंगे, हमारे pencils तैयार रखेंगे because अगले section में हम इनको circle करेंगे. So now tell me what is imagery? क्या आपको imagery ये चीज पता है? अगर नहीं पता है तो आप अभी आपकी आंखें बंद कर लो और इमेजिन करो कि मैंने बोला है नदी का किनारा. नदी के किनारे क्या क्या इमेजेस आपके दिमाग में आते हैं, क्या क्या स्मेल्स आते हैं, क्या क्या साउंड्स आते हैं? मैंने सिर्फ बोला है नदी का किनारा और आप अब आंखें बंद कर रहे हो और इमेजिन कर रहे हो. मुझे बहुत सारा पानी दिख रहा है, पानी की वो गड़गड़ 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 आवाज आ रही है. पत्थर दिख रहे हैं, ब्लू स्काई दिख रहा है, फिशेस दिख रहे हैं, ग्रास का स्मेल आ रहा है. या दीज आर ऑल ऑफ द 5 सेंसेस जो मेरे एकदम एक्टिव हो गए जब मैंने बोला नदी का किनारा. तो मेरे 5 सेंसेस एक्टिव कैसे हो गए? क्योंकि मैं इमेजिन कर सकती हूँ. ऑलराइट, आपके भी 5 सेंसेस है. कौन सा है आपके 5 सेंसेस? Let's count. You can see. You can see with your eyes. You can smell. You can smell with your nose. You can hear. You can hear with your ears. You can taste. You can taste with your tongue. Lastly, what can you do with your hands? What can you feel? You can feel and touch with your hands. So if there is a word, कोई ऐसा word अगर है जिसके वजह से आपके दिमाग में पिक्चर्स आ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं इमेजरी. या फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने प्लेग्राउंड बोला है, और आपको आंखें बंद करने को बोला है, तो क्या दिखता है आपको? क्या दिखेगा? आप ही मुझे बताओ. मैं अब आपको प्रॉम्प्ट्स नहीं दूंगी. प्लेग्राउंड जब मैं बोलती हूँ तब आपको क्या दिखता है? ये आपका पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, इफ आई क्लोज माई आईज कैन आई सी दिस वर्ड? क्या मैं प्लेग्राउंड आंखें बंद करके भी देख सकती हूँ? ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 2, क्रैश, धड़ाम, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई दी तो आपको क्या लगता है कहाँ से आई होगी वो? और अगर मैंने सिर्फ क्रैश ये शब्द बोला तो क्या आपके कान में आपको वो सुनाई दे रहा है? अभी आपके कान बंद कर लो और रीड करो क्रैश ये शब्द रीड करो. क्या आपकी आंखें बंद करके, कान बंद करके आपने जब ये शब्द पढ़ा, आपके दिमाग में कोई पिक्चर्स आते हैं या कोई साउंड्स आते हैं? मेरे दिमाग में किचन में प्लेट गिरने का आवाज आ गया, क्रैश. या नहीं तो कांच फूटने का आवाज आ गया, क्रैश करके. So whenever you see a word, if it can make a sound in your head, that is also imagery. अगर कोई वर्ड पढ़ के आपके दिमाग में कोई साउंड भी आ जाए उसको भी हम इमेजरी कहते हैं. अभी तो देखो, मैंने आपके मुंह में एक चम्मच शक्कर डाला तो नहीं है, पर जब मैं शक्कर ये शब्द बोलती हूँ, when I say the word sugar, what can you taste? क्या आपको एकदम कड़वा लगता है? क्या एकदम खट्टा लगता है?
I don't think so. When I say sugar, जब मैं शक्कर बोलती हूँ तब आपके दिमाग में मीठा मीठा टेस्ट आ जाता है. Yeah, that is because the word sugar is also imagery. Sugar इस शब्द से आपके मुंह में टेस्ट भी आ सकता है. Yeah, so that is also imagery. Moving along, garbage can. अगर मैंने बोला garbage can, कचरे का ढेर, तो आपको क्या लगता है कौन से स्मेल्स आएंगे आपके दिमाग में? बिना वहां पे खड़े रह के, बिना उसकी तरफ देखे, अगर आपने बस कचरे का ढेर ये शब्द सुना और इमेजिन किया, तो आपके दिमाग में कौन से स्मेल्स आएंगे? क्या अच्छी सी खुशबू आएगी, एकदम रोजेस नहीं तो परफ्यूम की तरह, या एकदम गंदी स्मेल आएगी कचरे के ढेर की तरह? या नाउ बिकॉज गार्बेज कैन इज ऑल्सो एन इमेज, हमें गार्बेज कैन ये शब्द स्मेल भी हो सकता है. सो दैट इज व्हाई इफ आई क्लोज माय आईज कैन आई स्मेल दिस वर्ड? इसका आंसर भी यस होगा. अभी आप मुझे बताओ कि आप क्या स्मेल कर पाते हो जब आप गार्बेज कैन बोलते हो. ऑलराइट, मूविंग अलोंग, किटन. अभी एक छोटा सा कैट इमेजिन करो. एक छोटा सा कैट आपके हाथ में है. किसी ने आपके गोद में एक छोटा सा कैट रखा है. अभी उसका फर कैसे लगता है आपके हाथों पर? उसके बाल कैसे लगते हैं आपके हाथों में? क्या बहुत रफ होते हैं, एकदम काटे काटे कैक्टस की तरह? नहीं तो एकदम सॉफ्ट, एकदम फर जैसे, एकदम अपने मलमल का ब्लैंकेट के जैसे लगता है. If you close your eyes, can you feel this word? Kitten ये शब्द आपके हाथों में क्या आपको फील होता है जब आपने आपकी आंखें बंद करके इमेजिन किया तो? हाँ, because kitten is also an image. So now let's move on. In this poem, there are actions we can see and actions we can hear. इस पोएम में जो हमने 10 एक्शन वर्ब्स जान लिए हैं, उनमें से कोई ऐसे हैं जो हमें दिखते हैं और कोई ऐसे हैं जो हमें सुनाई देते हैं. तो जो एक्शंस हमें दिखते हैं उनको हम रेड अंडरलाइन करेंगे. क्या अंडरलाइन करेंगे? रेड. ओके. और जो एक्शंस हमें सिर्फ सुनाई देते हैं उनको हम हमारे सादे पेंसिल से सर्कल करेंगे. ऑलराइट, लेट्स सी. मेक नॉइज. क्या ये एक्शन हमें दिखाई देगा या सुनाई देगा? ये एक्शन हमें सुनाई देगा क्योंकि नॉइज का मतलब है शोर, और शोर हमें सुनाई देता है. तो शोर, मेकिंग नॉइज को हम सर्कल करेंगे. सिमिलरली, लाफ एंड शाउट, क्वाइट, रिंग्स आउट, ये भी शब्द हमें सुनाई देते हैं तो हम इनको सर्कल करेंगे. Alright, these are things we can hear, so we will circle them. Now, run, jump, walk about, play. क्या ये actions हमें सुनाई देते हैं या दिखाई देते हैं? मुझे लगता है ये actions हमें दिखाई देते हैं. रन करते हुए हम सिर्फ किसी को देख सकते हैं. क्या हम उनका स्मेल देख सकते हैं? अगर यहाँ से वहां चैतन्य भागा तो क्या वो मुझे मेरे स्किन पे फील होगा या क्या वो मुझे दिखाई देगा? Alright, I can see it, so I will underline it with red. Run, jump, ये एक्शन वर्ब्स मुझे दिख रहे हैं. Walk about, ये एक एक्शन वर्ब है जो मुझे दिखाई दे रहा है. Play, ये एक एक्शन वर्ब है जो भी मुझे दिखाई दे रहा है. तो मैं इनको रेड से अंडरलाइन कर रही हूँ. आगे, देयर आर ऑल्सो थिंग्स, चीजें हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं. तो उन पर हम बॉक्स लगाएंगे. हमारे सादे पेंसिल से हम उन चीजों पर बॉक्स लगाएंगे जो हमें दिख रहे हैं. चीजें नहीं तो
कैरेक्टर्स नहीं तो क्रीचर्स जो कोई है जो हमें दिखाई दे रहे हैं उन पर हम बॉक्स लगाएंगे। फॉर इंस्टेंस गर्ल्स एंड बॉयज, अगर मैंने गर्ल्स एंड बॉयज बोला तो क्या आपके दिमाग में बर्ड्स का इमेज आता है, भाजी की टोकरियों का इमेज आता है? नहीं, आपके दिमाग में गर्ल्स और बॉयज के इमेजेस आते हैं, गर्ल्स और बॉयज के पिक्चर्स। नहीं तो गर्ल्स और बॉयज आपके दिमाग में आंखें बंद करके आपको इमेजिन कर सकते हो। तो this is also an image, girls and boys is also an image, we will put a box around it, हम इस पर एक बॉक्स लगाएंगे। Similarly, groups of children अगर मैंने बोला तो क्या आपको पेंटिंग दिखाई देगा या ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन? ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन दिखाई देंगे, तो यू विल बॉक्स दैट, इस पर भी आप बॉक्स लगाओगे। आगे देयर आर ऑल्सो हाउ, वो हमारा सेंटेंस वाला ट्रायंगल अगर आपको याद है तो उसमें होता है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। इस पोएम में हमारे काफी सारे कैसे हैं जो हमें दिखाई देते हैं, तो उस पर हम ब्लू अंडरलाइन करेंगे। कौन सा कलर? ब्लू कलर। सो आपका ब्लू पेंसिल लेकर अंडरलाइन करने के लिए तैयार रहो। बिकॉज हियर एंड देयर, कहाँ कैसे? हियर एंड देयर, ये हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ वहाँ ये हमें दिखाई दे रहा है, तो हम उस पे ब्लू अंडरलाइन करेंगे। फिर विथ माइट एंड मेन, एकदम जोर लगा के, जैसे वो बच्चे उन अंकल का हाथ नीचे करने के लिए जोर लगा रहे थे, तो जोर लगा के अगर हमने आंखें बंद की और हमने किसी को बताया कि अब जोर लगा के पुश करो, तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? उनका पुश करने का पिक्चर विथ माइट एंड मेन। ये एक कैसा है जो हमें दिखाई दे रहा है, तो उस पर हमने ब्लू अंडरलाइन किया है। आगे अभी हमने जो सारे नए नए वर्ड्स, नए एक्शन वर्ड्स जान लिए हैं, और एक्शन वर्ड्स का एक पिक्चर भी आपने देख लिया है, तो वो यूज करके अभी आप इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है ये मुझे 3 या 4 सेंटेंसेस में लिख कर बताओगे। आप आपका सेंटेंस ट्रायंगल यूज कर सकते हो और मुझे 3 या 4 सेंटेंसेस में इस पिक्चर में क्या हो रहा है ये बताओगे। सबसे पहला पिक्चर है ये, मैंने आपको थोड़े क्लूज दिए हैं। डिलीवरी बॉय, मतलब ये जो इंसान है वो है डिलीवरी बॉय। बॉक्सेस ऑफ पिज्जा जो इसके हाथ में है। डोरबेल, दरवाजे की घंटी। स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना। रिंगिंग मतलब डोरबेल बजाना। स्माइलिंग जो ये इंसान कर रहा है। नाउ यू हैव ऑल ऑफ दीज क्लू वर्ड्स, ये क्लू वर्ड्स है आपके साथ, तो आपने इन क्लू वर्ड्स को लेकर 3 या 4 सेंटेंसेस में मुझे बताना है ये लड़का क्या कर रहा है, what is happening in this picture। आगे हॉपस्कॉच, ये गेम हम सबको पता है कि हमने 1 से लेके 10 तक फ्लोर पे बॉक्सेस कर लिए हैं और उसमें हम 1 या 2 पैर पर जंप करते हैं। हम हॉप करते हैं नहीं तो स्किप करते हैं, या सो द नेम ऑफ द गेम इज हॉपस्कॉच। यू होल्ड ऑन टू समथिंग, आप हॉप करते हो, स्किप करते हो, ड्रॉ करते हो, वॉच करते हो। यूजिंग दीज वर्ड्स in 2 or 3 sentences, 3 or 4 sentences, tell me what is happening in these pictures. Okay? Happy studying!